السلام علیکم۔ آج منگل ہے، دسمبر کی 19 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ۔ پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل عاصم منیر نے اپنے جاری دورہ امریکہ میں اعلیٰ سیاسی اور فوجی حکام سے ملاقاتیں کی ہیں، اور ان اہم ملاقاتوں کو دیکھتے ہوئے آرمی چیف کے اس دورے کو اہمیت کا حامل قرار دیا جا رہا ہے۔ یہ دورہ ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات میں تناؤ پایا جاتا ہے، اور کالعدم ٹی ٹی پی کے خلاف اقدامات میں جی ایچ کیو پینٹاگون سے عسکری تعاون چاہتا ہے۔ واشنگٹن پہنچنے کے بعد آرمی چیف نے گزشتہ ہفتے اہم امریکی حکومتی عہدیداران اور فوجی حکام سے ملاقاتیں کی ہیں، جن میں امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن، وزیر دفاع لائٹ جے آسٹن، نائب وزیر خارجہ وکٹوریہ ناولینڈ، نائب مشیر قومی سلامتی جونیتھن فائنر اور چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف جنرل چارلس کیو براؤن شامل ہیں۔ اس کے علاوہ سوموار کو انہوں نے فلوریڈا میں سینٹ کام مرکزی کمان کے دفتر کے دورے کے موقع پر کمانڈر جنرل مائیکل ایرک سے ملاقات کی۔ نومبر سن 2022 میں آرمی چیف مقرر ہونے کے بعد جنرل عاصم منیر کا یہ پہلا دورہ امریکہ ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے عام انتخابات میں حصہ لینے کے خواہش مند امیدواروں کے لیے ہدایت نامہ جاری کر دیا ہے۔ الیکشن کمیشن کے مطابق ایک کاغذات نامزدگی کا فارم حاصل کرنے کی فیس 100 روپے ہے، اور امیدوار کاغذات نامزدگی 20 سے 22 دسمبر تک جمع کروا سکتے ہیں۔ ادھر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی زیر نگرانی انتخابات پر تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے ان سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا ہے۔ سپریم کورٹ بار نے بھی ایک بیان میں مطالبہ کیا ہے کہ انتخابات کے لیے تمام اسٹیک ہولڈرز کو یکساں مواقع فراہم کیے جائیں۔ شکایات کو دور کیے بغیر محض انتخابی ٹائم لائن پر عمل کرنا استحکام کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ پاکستان کے نگراں وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی نے پیر کو ایرانی وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان سے ٹیلی فون پر بات چیت کی۔ انہوں نے دو طرفہ اہمیت کے امور اور علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر خارجہ نے 15 دسمبر کو جنوب مشرقی ایران میں دہشت گردانہ حملے کی شدید مذمت کی، جس کے نتیجے میں متعدد ایرانی سیکیورٹی اہلکار ہلاک ہو گئے تھے۔ انہوں نے دہشت گردی کے خطرے سے نمٹنے کے لیے ایران کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے پاکستان کے پختہ عزم پر زور دیا، جو علاقائی امن اور سلامتی کے لیے ایک اجتماعی چیلنج ہے۔ شمال مغربی چین میں آنے والے 6.2 شدت کے زلزلے سے کم از کم 126 افراد ہلاک اور سینکڑوں زخمی ہو گئے ہیں۔ سرکاری میڈیا نے بتایا کہ منگل کے دوپہر تک صوبے گانسو میں کم از کم 113 افراد کی موت اور 530 سے زیادہ زخمی ہونے کی اطلاعات تھیں۔ سرکاری نشریاتی ادارے سی سی ٹی وی نے رپورٹ کیا ہے کہ پڑوسی صوبے شنگھائی کے ہائی ڈونگ میں مزید 13 افراد ہلاک، 182 زخمی اور 20 لاپتہ ہیں۔ سی سی ٹی وی کے مطابق زلزلے نے 1,55,000 سے زیادہ عمارتوں کو نقصان پہنچایا ہے۔ بنگلہ دیش میں حکومت مخالف احتجاج شدت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ مظاہرین نے منگل کو ایک ٹرین کو نذر آتش کر دیا، جس کے نتیجے میں ایک ماں اور بچے سمیت 4 افراد ہلاک ہو گئے۔ بنگلہ دیش میں اپوزیشن جماعتوں نے ملک گیر ہڑتال کی کال دی ہے۔ اپوزیشن کا مطالبہ ہے کہ آئندہ ماہ کے آغاز میں عام انتخابات سے قبل موجودہ حکومت مستعفی ہو اور نگراں حکومت انتخابات کا انعقاد کروائے۔ فائر سروس کے عہدیدار شاہجہاں کا کہنا تھا کہ ہڑتال کے دوران مظاہرین نے ڈھاکہ جانے والی ایکسپریس ٹرین کے 3 کمپارٹمنٹس میں آگ لگا دی۔
पुलिस ने इस वाकये की तफ्तीश शुरू कर दी है, ताहम ये वाज़ेह नहीं कि ट्रेन में कितने अफराद सवार थे। और अब इसराइल गजा लड़ाई की ताज़ा सूरत हाल और आलमी खबरें। गजा की पट्टी के दूसरे सबसे बड़े शहर खान यूनुस में मंगल को इस्राएली फोर्सेस और हमास के अस्करी पसंदों के दरमियान शदीद लड़ाई हुई, जबकि गजा में सेहत के हुकाम ने मिस्री सरहद के करीब इस्राएली फजाई हमलों की इत्तला दी है। हमास के ज़ेर इंतजाम गजा की वजारत सेहत ने कहा कि रफा में इस्राएली हमलों में कम से कम 20 अफराद मौत का शिकार हो गए। ताज़ा तरीन लड़ाई उस वक्त हुई जब अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल मंगल को एक करारदाद पर वोटिंग करने वाली है, जिसमें गजा में लड़ाई रोकने का मुतालबा किया गया है ताकि फ़लस्तीनी शहरियों के लिए खुराक, पानी और अद्वियात की इंसानी बुनियादों पर इमदाद की फराहमी में आसानी हो। अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने पीर को इसराइल की जानिब से गुंजान आबाद गजा में शहरियों की हलाकतों को रोकने की अहमियत पर जोर दिया और हमास के खिलाफ जंग में इसराइल की हिमायत के लिए गैर मुतज़लज़ल अमरीकी अज़्म का इयादा किया। इसराइल में अपने हम मनसब योव गैलेंट के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ऑस्टिन ने गजा में हमास के ज़ेर हिरासत बागी यरगमालियों की वापसी का मुतालबा किया और इसराइल के अपने दिफा के लिए बुनियादी हक की तस्दीक की। ऑस्टिन ने मजीद कहा कि अमरीका तसादुम के दौरान शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ और गजा में इंसानी इमदाद की फराहमी को बढ़ाने पर जोर देता रहेगा। अमरीकी कौमी सलामती कौंसिल के तर्जुमान जॉन कर्बी ने कहा है कि बाइडन इंतजामिया उम्मीद कर रही है कि दोबारा शुरू होने वाली बातचीत से आरजी जंगबंदी और इमदाद के बदले यरगमालियों की रिहाई का एक और दौर मुमकिन होगा। कर्बी ने अमरीका की तरफ से इस बात की तस्दीक की कि अमरीकी और इसराइली इंटेलिजेंस के सरबराहान और कतर के वजीर आज़म के दरमियान यरगमालियों के बारे में बातचीत हालिया दिनों में दोबारा शुरू हुई है, ताहम ये वाज़ेह नहीं कि हमास ने बिलवास्ता बातचीत में शमूलियत पर रजामंदी जाहिर की है या नहीं। बहरा अहमर में बहरी जहाजों पर यमन के हौसी ग्रुप के हमले मालबरदार कंपनियों को रास्ता बदलने पर मजबूर कर रहे हैं। ईरान से मुंसलिक हौसियों ने कहा है कि यह हमले गजा की पट्टी पर इसराइल के हमले के जवाब में हैं। यह सूरत हाल अमरीका और उसके इत्तेहादियों को जुनूबी बहरा अहमर और खलीज अदन में मुश्तरका गश्त करने और एक कसीर कौमी ऑपरेशन शुरू करने का बाइस बनी है। इसराइल में अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने पीर को कहा कि किसी भी ग्रुप या रियासत को अमरीका के अज़्म का इम्तिहान नहीं लेना चाहिए। दूसरी जानिब हौसी बागियों ने कहा है कि वो अमरीका की जानिब से एक नई बहरी हिफाजती फोर्स के ऐलान के बावजूद बहरा अहमर में जहाजों पर हमले नहीं रोकेंगे। बरतानिया के वज़ीर खारजा डेविड कैमरॉन ने मंगल को कहा कि फ्रांस और बरतानिया रूस के खिलाफ जंग में यूक्रेन की हिमायत जारी रखेंगे, चाहे उसमें जितना भी वक्त लगे। उन्होंने मजीद कहा कि यह जरूरी है कि सदर व्लादिमीर पुतिन को शिकस्त हो। कैमरॉन ने फ्रांसीसी हम मनसब कैथरीन कोलोना के साथ पेरिस में बातचीत के बाद कहा कि बरतानिया और फ्रांस यूक्रेन के कट्टर हामी रहे हैं और हम यूक्रेन के साथ रहेंगे। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि यूरोपीय यूनियन की तरफ से रूस पर आयद करदा नई पाबंदियां जंग के दौरान उनके मुल्क की मदद करेंगी। यूरोपीय यूनियन ने कहा है कि ब्लॉक की तरफ से मुतारिफ कराया गया पाबंदियों का ये 12वां सेट है जो रूसी हीरों की दरामद पर पाबंदी के साथ साथ दीगर दरामदी और बरामदी पाबंदियों और इस सिलसिले में मौजूद खामियों पर काबू पाने के लिए इक़दामात पर तवज्जो मरकूज करता है। जनूबी कोरिया, जापान और अमेरिका ने मंगल को एक मुश्तरका ऐलान में कहा कि उन्होंने शिमाली कोरिया के मिसाइल लॉन्चों का सही वक्त पर पता लगाने के लिए एक निज़ाम को फ़ाल किया है और 6 फरीकी फौजी मशकों का मंसूबा बनाया है।
तीनों ममालिक के कौमी सलामती के हुक्काम ने अलहदा तौर पर शिमाली कोरिया की गैर कानूनी साइबर सरगर्मियों को रोकने के बारे में एक वीडियो कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। शिमाली कोरिया ने मंगल के रोज कहा कि उसने अमेरिका की बढ़ती हुई दुश्मनी के खिलाफ अपनी जौहरी कुव्वत की जंगी तैयारी का अंदाजा लगाने के लिए पीर के रोज जदीद तरीन बैनल बर आजमी बैलिस्टिक मिसाइल यानी ICBM का तजर्बा किया है, क्योंकि वाशिंगटन और उसके इत्तेहादियों ने रियल टाइम मिसाइल डेटा शेयरिंग सिस्टम को चलाना शुरू कर दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा की कमान ने मंगल को कहा कि शिमाली कोरिया के साथ मुश्तरका सरहद पर जॉइंट सिक्योरिटी एरिया JSA या जनूबी कोरिया की जानिब फौजियों को बंदूकें ले जाने का इख्तियार दिया गया है, क्योंकि प्योंगयांग के फौजियों ने मुबैना तौर पर पिछले महीने वहां हथियार ले जाना शुरू कर दिए थे। शिमाली और जनूबी कोरिया ने सन 2018 के फौजी मुआहदे के मुताबिक JSA पर अपने फौजियों को गैर मुसल्लह करने पर इत्तेफाक किया था। सोल ने प्योंगयांग की जानिब से जासूसी सैटेलाइट लॉन्च करने के बाद 5 साल पुराने मुआहदे को जुज़वी तौर पर मुअत्तल कर दिया था। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट, यूट्यूब और पॉडकास्ट पर ये बुलेटिन आपके लिए पोस्ट कर दिया जाता है। आप हमारे बुलेटिन को शेयर करते हैं और अपने कमेंट्स में अपनी मोहब्बतों का इज़हार करते हैं, जिसके लिए हम आपके बेहद मशकूर हैं। अपनी इन मोहब्बतों को, इन दुआओं को जारी रखिएगा। न्यूज़ प्रोड्यूसर सैयद असफर इमाम और न्यूज़ एडिटर बहजत जिलानी के साथ खालिद हमीद को आप इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।